Well, I think Chennai is totally bringing its A game onto the ground. They've taken 3 wickets already and they're doing it in style just like the Yamaha Fasino. And right now I have the very tall, long leg beauty with me, Sanam. Hi Sanam, how are you doing today? Good. Thanks, Amina. I'm doing great. The pressure is getting up now. So just anticipating what's going to happen. So clearly she's keeping her fingers crossed for the Chennai Rhinos. Now, you're a young girl, you're very pretty, you're very fashionable, and we have this fabulous bike here, right? On display, which is the Yamaha Fasino, which is a very functional, fashionable bike. So if you had to pick out one Chennai Rhinos player to take with you on a bike ride, who would that be? Who would that lucky gentleman be? I think Arya. Arya, I hope Arya can hear this. I'm sure he'll be totally flattered and probably losing a little attention from the game right now because Sanam wants to take you on a ride. But Sanam, we also want to know, apart from seeing you here at CCL, tell us about your movies. My latest release was Vellayar Krava Poi Solamata, very interesting film in Tamil. So upcoming release would be Savari, which I'm awaiting the end of this month. In Telugu, I have Premikudu, which is getting up to be released very soon. So that's wonderful. Lots of Sanam to look forward to. Okay, Sanam, I'm going to let you go cheer for Arya and the other boys, of course. And let's hope they continue to give us this fabulous game, right? I'm very sure they will. Bye. I'll see you there. Bye. धन्यवाद समीना। यामा फैसिनो के साथ साथ दो खूबसूरत सुंदरियां भी मौजूद थी जिनका इंटरव्यू आपने देखा किस तरीके से बातचीत चल रही थी। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अमरनाथ। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। Thank you very much, Manoj. 61 for 3. Uphill task for them. Plays it in the air. Has he cleared it? Well, he has done it in style. Up goes the hand of the umpire. Last delivery picks up a 6. 67 for 3 after 11 overs. अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है CCL 2016 के इस संस्करण की अगर बात की जाए। काफी संख्या में यहां पर स्थानीय समर्थक मौजूद हैं। हालांकि सीधे प्रसारण के माध्यम से भी आप सब CCL का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा उत्साह। Well, they'll have to get at least 10 runs per over. Plays it and plays it very straight. There is a fielder at long on. Picks up one bounce. If the target is to be achieved, it has to be achieved in style through big, lusty hittings. This one turned. Takes the inside edge, goes to fine leg. Will pick up 2. Now coming back to your discussion about the wristy players, talking about कलाइयों की बात आप कर रहे थे मनोज। ये कलाइयाँ जो हैं उसका इस्तेमाल बहुत से क्रिकेटर्स करते रहे हैं। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो कलाइयों के लिए बहुत सुंदर कड़े, नगीने वाले कड़े मिलते हैं। जाने जाते हैं चार मीनार में अगर आप जाएं तो नगीने वाले कड़े मिलेंगे, वो भी इस्तेमाल करते हैं कलाइयों पे। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे थे अजहर, VVS और आपने उसमें जोड़ दिया कलाइयों वाले कड़े की। और इस कड़ी में मैं सानिया मिर्जा जो कि कलाइयों की मदद से बैकहैंड शॉट खेलती हैं और साइना नेहवाल कलाइयों की मदद से जो स्मैश लगाती हैं, निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना लोहा मनवा लिया है। Flighted one goes over extra cover. 1, 2 and it goes over the rope for a boundary. Absolutely good to this is the kind of shot you need to play. Benny, who was exceptionally well while bowling, picked up a hat trick. Now he's using the willow. Flighted one, not an easy shot to play inside out. Well, the Stars have learned from the cricketing stars how to play this kind of a shot. There's been a change in the field setup. Deep extra cover has been set there for that inside out. So packed offside field. 6 on the offside, 3 in the circle. And backward point to save the boundary on the third man area. A lot of changes have been going. Wow, there's a change. So it is 5-4 again. Now, again a change. It's going to be 6-3. Looking at
this kind of a field placement, it's evident it's going to be bowled outside the off stump. Oh, this one turned and it's the dot delivery. 77 for 3 after 12 overs. आप देख रहे हैं बेहद रोचक रोमांचक मुकाबला केरला स्ट्राइकर्स और चेन्नई राइनोस की टीमों के बीच में। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी वॉर्म निचले हिस्से में दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि 3 विकेट खो दिए हैं, 3 झटके लगे थे केरला स्ट्राइकर्स टीम को, जिस वजह से ये वॉर्म नीचे है। लेकिन अभी भी समय मौजूद है, अगर मौके पर बीमारी का इलाज कर लेंगे तो इसे महामारी होने से बचाया जा सकता है। ऑफ साइड में 30 गज के दायरे में 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं, जिस वजह से खेल रुका हुआ है। 48 गेंदों के ऊपर 80 रनों की आवश्यकता। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ। ये वो क्षेत्र होता है जहां से बल्लेबाज को सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश होना पड़ता है। सीसीएल सुपर फैन बनने का आपके पास मौका रहेगा। यहां पर वाइड का इशारा अंपायर नितिन पाई का, 1 रन मिला। तो पिछली जो डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे थे गेंदबाज, उसकी यहां पर भरपाई हो गई है अगर केरला स्ट्राइकर्स की बात की जाए। अब तक इस पारी में 11 वाइड बॉल फेंक चुकी है चेन्नई राइनोस की टीम। तनाव और दबाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है केरला स्ट्राइकर्स के खेमे में। 47 गेंदों पर 79 रनों की आवश्यकता। ऐसा लगता है कि शायद हल्की सी ओस मैदान में गिरी है, जिस वजह से टॉवल से बॉल को पूछ करके उन्होंने ये बॉल फेंकी थी। इस बीच में काफी देर तक बॉल हवा में रही, 2 खिलाड़ी बॉल के नीचे भी आ गए थे, लेकिन यहां पर 4 रनों का इशारा आया अंपायर नितिन पाई का। इस पिक्चर फ्रेम से स्थिति बिल्कुल साफ होगी। हालांकि जोरदार स्ट्रोक खेला जरूर था, ओवर पिच बॉल थी, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, ठीक से बॉल बल्ले पर नहीं आई, बल्ले के निचले हिस्से में आई थी। फील्डर पहुंच चुके थे और ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग ऑन क्षेत्र के फील्डर थे उनके हाथ पर बॉल लगने के बाद बाउंड्री लाइन को छू गई, जिस वजह से 4 रन मिले। गैप में बॉल को खेला है, पहला रन काफी तेज गति से लिया, यहां पर बढ़िया रनिंग विद इन द विकेट। चूंकि ऑन साइड में एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे में फाइनल क्षेत्र में मौजूद है, जिस वजह से लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग, इतना लंबा गैप है। अगर आप शफल करके अंदर की तरफ आए और कलाइयों का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से 1 रन की संभावना सदैव बनी रहती है। बॉल को सफाई के साथ नहीं पकड़ पाए थे विकेट कीपर। मौका बन सकता था क्योंकि अंपायर की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आया, कोई भी इशारा नहीं किया अंपायर ने। ऐसा लगता है कि बॉल बल्ले से लगने के बाद फाइनल क्षेत्र में पहुंची थी। दोनों ही टीमों के जो समर्थक हैं उनके चेहरों पर तनाव, दबाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज चेन्नई की ये टीम इस मैच में जिस मूल मंत्र के साथ उतरी है उसमें केवल जीत, विजय श्री का शब्द ही मौजूद है, क्योंकि आज हारे तो सीसीएल 2016 से बाहर हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से अक्रॉस द लाइन बॉल को मिड विकेट क्षेत्र में खेला था। हालांकि ठीक से संतुलन नहीं बना पाए थे, लेकिन सफलता मिली 1 रन बनाने में। अब तक इस ओवर में 9 रन बन चुके हैं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर्स के पश्चात 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी के 13 ओवर्स के पश्चात 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता रहेगी। बैनी फिलहाल स्ट्राइक पर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की आज
एक हैट्रिक बनाने में सफल रहे थे CCL 2016 सीजन 6 में। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की बैनी ने। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई के बल्लेबाज खुल करके स्ट्रोक्स लगाएंगे, लेकिन बैनी ने आकर के न केवल रनों पर अंकुश लगाया बल्कि एक के बाद एक विकेट लेकर के शानदार वापसी दिलाई अपनी टीम को। गोपन 11 के व्यक्तिगत योग पर लगातार दर्शकों की स्थिति में तब्दीली होती जा रही है। काफी संख्या में यहां पर दर्शक आने शुरू हो चुके हैं। पार्ले क्राउड इस बीच में सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक मौका और निकल गया हाथ से। हालांकि अंतिम समय में डाइव करके बॉल को पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। मुश्किलों में पड़ सकते थे बल्लेबाज अगर ये बॉल क्षेत्ररक्षक के हाथों में स्थापित हो जाती। बहुत अच्छी कोशिश की थी। Never easy to pick those kind of catches while you're fielding in the deep, especially when you have to cover 10 to 15 yards. Both the batsmen have realized, Gopan and Kenny, that they have to go for big shots. At this stage, any dot delivery puts more pressure on the batsman. Benny has been in his element both while bowling and now, once he has got a willow in his hand. Gopan trying to give more strike to Benny because he's been hitting it rather cleanly. The required run rate climbing to 10.58. Task becoming more difficult if Kerala strikers have to reach the target. Just hiked it over, short fine leg. Good thinking. Finding the fine leg in the 30-yard circle. Just played it over the head of the fielder. Picks up a boundary. Well, there's a question for you. Who will pick highest wickets? Using his fingers but not bowling at the right area, resulting in 4 runs for Kerala strikers. खेल के मैदान में हसीनाएं, एयर रिंग्स और हाथ में गर्म चाय की प्याली हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आनंद महसूस कर रही होंगी, जितना कि हम कमेंट्री बॉक्स में महसूस कर रहे हैं। उन्हें देख करके बहुत ही बढ़िया कैमरा वर्क और खूबसूरती तो हम ढूंढ ही लेते हैं, बस खूबसूरती महसूस होनी चाहिए। और CCL का उद्देश्य भी यही है कि खेल के मैदान में खूबसूरत चेहरों को लाना गेंद और बल्ले के साथ। Plays it well, picks up a single on the first delivery. Gopan has been doing a job exceedingly well, giving strike to Benny. These are the overs which will decide the outcome of the match. 35 balls, 62 runs to win. Plays it to the third man, short third man, picks up a single. It's going to be a close contest if Kerala strikers don't lose any more wicket. It can go either way. तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को देख रही होगी और प्रार्थना कर रही होगी कि इस मैच को चेन्नई जीत जाए, क्योंकि इसके बाद तेलुगु वॉरियर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमों के बीच में मैच होना है। अगर चेन्नई की टीम इस मैच को जीत जाती है तो सभी टीमों के 2-2 अंक हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं पार्ले क्राउड यहां पर काफी संख्या में मौजूद है। CCL की यही एक खासियत है कि स्थानीय दर्शकों को खींचने में सफल रहा है CCL। IPL के बाद दूसरे स्थान पर CCL, जिसके प्रति अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। इस बीच में बहुत ही जोरदार शॉट खेला है, अंपायर के सिग्नल का इंतजार और सिग्नल आया, दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि
स्कोर बुक में 6 रन दर्ज किए जाएंगे, 100 रन पूरे हुए इसी के साथ केरला स्ट्राइकर्स के। The great shot played inside out again. Up till now, they were finding it difficult, but once you give them room outside the off stump, no protection, playing in the air, but this one was sweetly timed for a 6. Oh, you don't like it. You don't like it. Those big shots don't give the smile. Another chance for picking up another run. This one a boundary. 6 and 4. Runs are coming. 107 for 3. Ladies and gentlemen, boys and girls, I want all of you to pay attention to the following announcement. Where cheap eats and cops are always there to help you. There are 60 cheap eats in the city. Always Runs there are to help coming. anyone in need. Taken first. Call 100. Benny especially has been very aggressive. 30 deliveries, 50 runs, and it is coming to be a tight game between Kerala Strikers and Chennai Rhinos. Game has changed its complexion while Chennai Rhinos were batting first. It looked as if they put up a big total, then quick wickets fell. And then Kerala came back into the game and they just restricted them under 160. Now, 5 crucial overs. 10 runs per over is what is required. Can they do it? They have done it. With me once again, Rashid Harun. स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। T20 क्रिकेट में इस तरह के टोटल कई बार हासिल करते हुए देखे गए हैं और शुरुआत केरला की पारी की बहुत नीरस की थी, लेकिन अब तो मुकाबला शबाब पर है। 15 ओवर हो चुके हैं और 107 है स्कोर। 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर बिन्नी गिरफ्त में लेते हुए मुकाबले को 17 गेंदों पर 34 लगा दिए हैं। 30 बॉलों पर 50 की आवश्यकता। डीप पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक सिंगल मिलेगा और बहुत स्टडी क्रिकेट भी खेलते हुए केरला के बल्लेबाज। और आइए आप देखते हैं समीना है किसके साथ डाउन द ग्राउंड।